A very good morning. In your yesterday's class, we had just gone through that why we need to have the constitution, right? Why a country should have a constitution. And in today's class, we will cover the idea of the key features of the Indian constitution. Already, I had discussed with you people that how under the British, the people they lived in the fear. They were not in a position to express themselves, right? Whatever the decisions were imposed on them, they were forced to obey those or to follow those decisions, right? And even the people, they were having very, very less, or you can say no participation in the government process, right? So the under these circumstances, the Indians, they were not at all treated as equal. So once the country got the independence and when it was a time to frame the constitution, so it was made clear, it was ensured that the people will get the equality, they will be treated equally, and they will be allowed to participate in the government. So now we also know that the government, it is formed by we people only through the elections, right? So ये जो system था, ये सारा का सारा, ये constitution जब बन रहा था उस समय ही ये चीजें decide हो गई थी. अभी जो constitution बन रहा था, this was not at all made by one person or a group of people. There were around 300 people who worked together for this constitution. And these 300 people, they were the members of the Constituent Assembly. Constituent Assembly बनाई गई जिसने ये constitution बनाना था, और this had the chairman as a Dr. Rajendra Prasad, right? Dr. Rajendra Prasad जो थे वो इस Constituent Assembly के head थे. 1946 में ही इसका काम जो था वो शुरू हो गया था, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, ये periodically they used to meet, they used to discuss, right? And whatever discussion, whatever debates were there while making the constitution, everything had been recorded. So ये जो हमारा constitution बना था, it had you can say consent of a large number of people. ऐसे ही नहीं किसी ने भी 2-4 लोगों ने मिलकर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, राइट, सबसे पहले बात क्या हुई कि अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो मीन टाइम कंट्री में पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान बन गए. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान चले गए, राइट. Anyhow, इसके अलावा भी when the country got partitioned, हमारे सामने कुछ टास्क थे, हमारी कंट्री के सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व होनी बहुत जरूरी थी, राइट. एक तो ये था, हमारी कंट्री जो है, वी आल्सो नो कि दिस इज मेड अप ऑफ सेवरल कम्युनिटीज who are speaking different languages, they are having different religions, they have different cultures and so on. So जब कोई रूल्स बनाने हैं तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी हो रहा था कि ऐसे रूल्स बनाए जाएं जो हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो, right? That every section of the society should be taken care of, and the interest of all the section of the society should be taken care, and no section should be remain unattended. इसके अलावा जब पार्टीशन हुआ तो हमारी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी. द कंट्री वाज गोइंग थ्रू सम टर्मोइल. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी उस टाइम कि हमारी कंट्री में डिवीजन हुआ. कितने सारे जो रिफ्यूजीज थे, दे केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, उनको भी सेटल करना है, उनकी फूड प्रॉब्लम है, उनकी रहने की प्रॉब्लम है, राइट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी है. कितनी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो पाकिस्तान चला गया,
राइट, कितने रिवर्स थी वो पाकिस्तान चली गई। सो ये काफी सारी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ जो सॉल्व होनी बहुत जरूरी थी। राइट, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इतने सारे लोग जो थे दे वर हैविंग देयर डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स। प्लस जब इंडिया पार्टीशन हुआ, सॉरी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस समय हमारी कंट्री वाज डिवाइडेड इन अराउंड मोर देन 500 स्टेट्स। आज हमारे पास अगर 28 स्टेट्स हैं, हमारी कंट्री इज डिवाइडेड इन 28 स्टेट्स, बट व्हेन द कंट्री वाज पार्टीशन इट वाज डिवाइडेड इन मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स। किंग्स जो थे वो राज करते थे, तो उन सबको कंट्री में मिलाना, राइट, उनको एक कंट्री में मिलाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी कंट्री के सामने। क्यों? क्योंकि वो हर कोई चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट रहें। अदरवाइज ये जो स्टेट्स थे, इंडियन स्टेट्स से, इनको एक फ्रीडम दी गई थी कि आप चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते हैं, आप चाहे तो इंडिया में रह सकते हैं, बट एटलीस्ट एक कंट्री में रहना है। बट ये प्रिंसली स्टेट्स क्या चाहते थे, किंग्स क्या चाहते थे, हम इंडिपेंडेंट रहे, ना हम पाकिस्तान में ना हम इंडिया में, हम इंडिपेंडेंट रूलर्स हैं। तो सबसे पहले एक तो ये जो किंगशिप थी ये खत्म करनी पड़ी, राइट, और ये जो स्टेट्स थे ये इंडियन यूनियन में मिलाने पड़े। सो उसके बाद अब ये डिसाइड किया गया कि अब हमने कंट्री रूल कैसे करनी है और क्या रूल्स बनाने हैं विच आर एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, कीपिंग इन माइंड India's diversity, India's not only the cultural, religious diversity, but also the geographical diversity. हमारी कंट्री में सबसे बड़ी जो चीज है वो है इसकी डाइवर्सिटी, कि उस डाइवर्सिटी को दिमाग में रखते हुए कैसे एक रूल बुक बनाई जाए जो सारे ही एक्सेप्ट कर ले, राइट। तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स जो बनाए, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, द फेडरलिज्म। इतनी बड़ी कंट्री थी, राइट, इतनी बड़ी कंट्री जो है उसमें अगर हम कहें कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है तो चल जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। अगर आपकी इतनी बड़ी क्लास है, हम कहें सिर्फ एक हमने डिसिप्लिन मॉनिटर बना दिया जी अब हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज टू बी डिवाइडेड, राइट। आपकी क्लासेस रोज में डिवाइड करते हैं ना हम लोग, रो 1 रो 2। जब हम मॉनिटर्स बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रो 1 का मॉनिटर ये है, रो 2 का मॉनिटर ये है, राइट, वी डू दीज थिंग्स। सो ऐसे ही एक सिस्टम बनाया गया, दैट वाज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मींस वेयर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन द कंट्री, where there is more than one level of government in the country। और हमारी कंट्री में क्या है, we are having 3 levels। we are having central level जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, then we have state level जहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, थर्ड वन इज द पंचायती राज या विलेज पंचायत, जैसे हम राइट थर्ड जो है उसे लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। विलेज लेवल पे ये विलेज पंचायत है, राइट, और अर्बन एरियाज में सिटी लेवल पे वी हैव द कॉर्पोरेशंस, राइट। सो ये है लोकल गवर्नमेंट्स। इट मींस दैट द लोअर लेवल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द अपर लेवल्स। उससे क्या है कि जो पर्सन सेंटर में बैठा हुआ है उसको एकदम छोटे लेवल पे लोगों का शायद नहीं पता होगा कि व्हाट आर देयर इंटरेस्ट एंड व्हाई दे शुड बी, आई मीन व्हाट दे वांट, व्हाट आर देयर डिमांड्स एंड सो ऑन। सी अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारी कोई डिमांड है, तो क्या हम सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाएंगे? नो, वी विल नॉट डू सो। हमारे लिए हमारे लोकल पहले लीडर्स हैं, हम उन लोकल लीडर्स के पास जाते हैं, उनसे हम बात करते हैं, राइट। सो उससे क्या होता है कि जो हमारे लोकल, जो हमारे आसपास हमारे जो लीडर्स हैं, दे आर बेटर अवेयर ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, दे कैन बेटर टेक द डिसीजंस इन आवर फेवर्स, राइट। और इसके अलावा एक और जो इसमें सिस्टम बनाया गया कि ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी है वो सारे कंट्री के रूल्स जो है वो खुद ही बना लेगी। कुछ ऐसे
सब्जेक्ट्स रखे गए, टॉपिक्स रखे गए जिसपे ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द लॉज, और कुछ ऐसे सिस्टम्स रखे गए, ऐसे टॉपिक्स रखे गए जिसमें ओनली द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक लॉज, राइट। और एक और एरिया ऐसा रखा गया जिसमें वो टॉपिक्स रखे गए जिसमें कि बोथ द स्टेट एंड द सेंटर कैन मेक द लॉज, जिसे कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट, राइट, जिसे कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट, राइट। सो ये जो यूनियन लिस्ट है हमारी, इसमें ऑलमोस्ट कहिए कि आप 97 98 ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में इट इज अराउंड 59 to 66 आइटम्स और द एरियाज जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लिस्ट बना सकता, सॉरी लॉज जो है वो बना सकती है, राइट। ये इसलिए भी रखा गया ताकि जो कंट्रीज हैं, जो आई मीन ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, एटलीस्ट दे विल बी हैविंग देयर ओन रूल्स। उनको पता है कि हमारे पास ये एरियाज है, हमने इन पे काम करना है, राइट। सब जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ये सब जो है ये आ गए थे कंकरेंट लिस्ट में, राइट। सो ये जो लिस्ट है, एज आई सेड कि these were made so that कि सारे जो गवर्नमेंट्स हैं they should be able to say make the laws in their own area। जो यूनियन लिस्ट है, राइट, यूनियन लिस्ट में क्या आ जाता है, लाइक हमारा डिफेंस है, हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, एटॉमिक एनर्जी है, राइट। इन सब के ऊपर हमारी यूनियन लिस्ट जो है वो, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है। एज फार एज स्टेट जो है, इसमें आ जाता है आपके हाई कोर्ट्स है या पुलिस है, और यू कैन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, इन सब के ऊपर जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट जो है वो बनाती है, आई मीन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाती है, राइट। एज फार एज कंकरेंट लिस्ट जो है, जिसमें स्टेट और सेंटर जो है वो दोनों ही बना सकते हैं, दैट इज द लॉज, क्रिमिनल लॉज या जो इंडियन पिनल कोड है, और यू कैन से द सिविल कोड्स में जैसे पार्टनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, देन मेनी अदर यू कैन से आर देयर, सिविल प्रोसीजर्स है, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, फॉरेस्ट है, देन योर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सारे जो है ये कंकरेंट लिस्ट में है, वेयर बोथ कैन मेक द लॉज, राइट। चलिए, एनी हाउ द second feature you can say that parliamentary form of government is there, right। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और क्यों है, why it is so। our country had been ruled by the British for long, right। इतने टाइम तक हमारी कंट्री जो है that was ruled by the British, right। और इंग्लैंड में it had been a parliamentary form of government, right। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां पर पार्लियामेंट भी काम करती है, और जहां पर क्वीन एलिजाबेथ, अभी करंट जो क्वीन एलिजाबेथ है, या हम कह सकते हैं मोनार्क जो है, दे आर ऑल्सो देयर, राइट। सो एनी हाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें से द representatives are chosen by the people, and the political party who gets the maximum votes, the leader of that particular party becomes the prime minister, and he is the leader of the government and even the parliament, right। so ये parliamentary form of government एक होती है presidential form of government, right। आपको मैं जैसे बताया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो हमारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है वो कंट्री को लीड करता है। तो कौन है हमारे, प्राइम मिनिस्टर है या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जहां पर प्रेसिडेंट जो होता है ही इज द लीडर, राइट। प्रेसिडेंट भी जो है वो भी ही इज आल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन वहां पर क्या होता है,
सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। हमारी कंट्री में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं होता है। ये इलेक्शंस होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुनने के लिए, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में जो विनिंग पार्टी होती है वो अपना लीडर खुद चुनती है, वो लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। अब हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका में इट इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, right? So under this parliamentary form of government, the Constitution of India has guaranteed universal adult suffrage. What is universal adult suffrage? Let me explain you that the adults, all the adults of the country gets the right to vote. अब हमारी कंट्री में adults कौन है? Those who are above the age of 18 years. जो भी 18 years के above हैं, that person is having the right to vote. So that is the universal adult franchise. हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है, हमारी कंट्री में it is 18 years, right? So when the constitution was being made, when it was being framed, so उस समय भी हमारी constituent assembly को ये लगा that the universal adult franchise should be there so that people can easily participate in the government making process. उससे क्या होगा, एक तो जो किंगशिप है ये भी खत्म हो सकती है, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो हम चुन पाएंगे, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये दे विल बी फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और ये जितने भी कुछ ऐसे सोसाइटी के हमारे सेक्शंस थे, कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जो पास्ट में भी दे हैड ऑलवेज बीन अ डिप्राइव्ड वन, दे हैड ऑलवेज बीन अ डिप्राइव्ड वन, राइट? तो उनको थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए भी कुछ वो बनाए गए रिजर्वेशंस जो थी वो बनाई गई या दी गई, राइट? सो उस रिजर्वेशंस के बेसिस पर ये था कि जो लोग थे, जो या वो कम्युनिटीज दोज हु हैड बीन deprived in the past, now they also got the chance to contest the elections, to stand in the elections, right? सो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो भी पार्लियामेंट में रही। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनते हैं थ्रू इलेक्शंस, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। वो अपना जो भी एक्शन लेंगे, जो भी डिसीजन लेते हैं, दे आर आंसरेबल टू वी पीपल। दे हैव टू जस्टिफाई दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर डिसीजन हैज बीन टेकन, राइट? सो ये प्रोविजंस जो थे ये दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हमारा एक फीचर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ऐसा नहीं है कि फाइन द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर, ही इज लीडिंग द कंट्री, ही इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस, राइट? डिसीजन ले रहे हैं, पास कर रहे हैं, किसी ने नहीं माना डिसीजन तो चलो उसको पनिशमेंट भी दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कंट्री में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो गवर्नमेंट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राइट? जिसे हम कहते हैं ऑर्गन्स, राइट? जब हमने फेडरलिज्म पढ़ा, फेडरलिज्म में हमने क्या पढ़ा कि दैट देयर आर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट? उसके 2 लेवल से, 3 लेवल से, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। ऑर्गन्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, which are totally independent, executive, legislature and judiciary। legislature क्या होते हैं? दो जो हमारे elected representatives हैं जो laws बनाते हैं। executive कौन है? जो उस law को implement करते हैं। judiciary क्या होते हैं? जिन्होंने जो laws को follow नहीं करते हैं उनके लिए ये एक provision है। plus in order to prevent the misuse of power by one branch of the government, the constitution says that each of the government should exercise different powers। अभी जो legislature है, judiciary है, executive है, इन सबकी powers अलग अलग है। नहीं तो क्या होगा कि अगर सबको एक जैसी powers दे दी जाएंगी तो वो misuse कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या था भाई, legislature की powers अलग है, executive के अलग है, judiciary के अलग है, independent है, right? And there was a balance between the powers that were allocated to these sections of the or the organs of the government, right?
हमारी कंट्री जो है इट इज अ डेमोक्रेटिक वन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब से हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुई है तब से ये डेमोक्रेटिक ही है। एक और फीचर दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, जो हमने कल क्लास में ऑलरेडी कर लिए थे कि ये क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, विच आर गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसलिए दिए गए क्योंकि हम जब ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो हमारे पास एज सच कोई लॉज नहीं है, कोई राइट्स नहीं थे, तो वी हैड बीन वेरी वेरी यू कैन से सप्रेस्ड इन द ब्रिटिश एरा। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए ताकि जो इवन गवर्नमेंट है वो अपना मिसयूज ना कर सके पावर का, और गवर्नमेंट को पता हो कि लोगों के पास ये राइट्स हैं, लोग हमारे अगेंस्ट कभी भी कोई एक्शन ले सकते हैं, राइट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल्स। मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी को सप्रेस ना कर सके, उसे परेशान ना कर सके, राइट। गवर्नमेंट जो है वो लोगों को सप्रेस ना कर सके, राइट। सो उससे क्या है कि जो हायर अथॉरिटीज है वो लोअर को you can say the higher authority should not misuse their powers। उस चीज से बचने के लिए भी जो फंडामेंटल राइट्स है ये दिए गए थे। फंडामेंटल राइट्स हमने कल एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिए थे क्लास में, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जिसके अंडर कि अगर हमारा कोई भी बाकी 5 फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं या कोई हमें नहीं देता है तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स या हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब लोगों को पता है या गवर्नमेंट को पता है कि द पीपल कैन गो टू द कोर्ट्स, राइट। सो ये जो ये राइट्स हैं दैट आर गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा हमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं दैट इज देयर फॉर द गवर्नमेंट, राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए गाइडलाइंस हैं, राइट। इट इज टू एंश्योर दैट ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज, की गवर्नमेंट के लिए कि तुमने कंट्री कैसे चलानी है। देन इज द सेक्युलरिज्म, लास्ट हमारी ये फीचर जो है सेक्युलरिज्म मींस कि यू आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। प्लस सेक्युलरिज्म में आपने एक चीज क्या याद रखनी है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन और सेक्युलरिज्म में हम थोड़ा सा डिफरेंस ये करते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है, वी आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मीन्स क्या है कि द कंट्री डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। जैसे पाकिस्तान है वो इस्लामिक कंट्री है, राइट। सऊदी अरेबिया है इस्लामिक कंट्री। इंडिया का में ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो स्टेट रिलीजन हो या कंट्री का रिलीजन, right? So the secular state is one in which the state does not officially promote any one religion or as a state religion, right? कोई भी state religion नहीं है, यहाँ पर सब रिलीजन जो है फॉलो होते हैं। जो गवर्नमेंट है या हमारा जो कंट्री है वो किसी एक रिलीजन को अपना कंट्री या ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानती है, राइट। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन गिविंग आउट द आइडियल्स। एज आई सेड कि ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि एवरीवन फील सिक्योर एंड दे वांट टू लिव इन सच टाइप ऑफ कंट्री, राइट। सो अब आगे के जो फर्दर चैप्टर्स होंगे वी विल बी कवरिंग द सेक्युलरिज्म इन डिटेल, राइट, एंड अदर फीचर्स। और कुछ फीचर्स ये भी है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। रिजिड ऐसे कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है चेंज नहीं कर सकती है। फ्लेक्सिबल कैसे है कि लोगों की जरूरत के हिसाब से पार्लियामेंट में 2/3 ऑफ मेजोरिटी के साथ कोई एडिशंस जो है इसमें किए जा सकते हैं। सो इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट्री, राइट। इसमें एडिशन और डिडक्शन जो है वो किए जा सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली ये ग्रो करता रहता है, स्टैटिक नहीं है कि एक बार बन गया 60 साल पहले तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, राइट। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर।